ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد، لندن سے اپنے ولاگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، آج میرے پاس ایک انتہائی بڑی اور اہم خبر ہے۔ عمران خان کو زہر دینے کی سازش کا انکشاف ہوا ہے اور قاسم علی شاہ اس معاملے میں بڑا کردار بن کر سامنے آیا ہے، اور قاسم علی شاہ نے کیا کرنا تھا اس بارے میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں، اور خوف کی وجہ سے، عمران خان کی شخصیت کے دبدبے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا جس کے لیے اس کو مامور کر کے بھیجا گیا تھا۔ ٹشو اٹھا کر جیب میں رکھنے کی اصل کہانی بھی سامنے آئی ہے، اور یہ ساری سازش بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ لندن سے بھی میرے پاس انتہائی اہم خبر ہے۔ لندن میں نوجوان شایان علی میاں بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر کے سامنے پہنچ گیا، اپنے صرف 2 ساتھیوں کے ہمراہ، جن میں سے ایک خاتون تھی، اور للکارتا رہا میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کو، لیکن پاکستان سے آیا ہوا پدی بدماش اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مریم اورنگزیب ڈڈو چارجر، پدی بدماش یعنی جاوید لطیف امی والا، وہ بھی دم دبا کر بھاگ گیا، اور مریم اورنگزیب تو باقاعدہ طور پر منہ چھپا کر بھاگ گئی۔ یہ سارا واقعہ بھی آج آپ کے سامنے رکھنا ہے ویلاگ میں۔ اس سے بھی بڑی ایک خبر یہ ہے کہ ہفتے کے روز دوپہر کو پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بڑی اہم شخصیت پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہی ہے، اور اس شخصیت نے بدھ کے روز پی ٹی آئی میں شامل ہونا تھا، لیکن منت سماجت کے ٹیلی فون آنے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے، اور آخر کار عمران خان کے ساتھ ایک اہم ٹیلی فونک ملاقات کے بعد یہ بڑی شخصیت جو ہے وہ ہفتے کے روز پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ کراچی میں انتخابات کے نتائج بھی جو ہے وہ خاصے نئے سرے سے سامنے آئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ ساری اہم خبریں آج میرے ولاگ کا حصہ ہیں، اور آج کا ولاگ آخر تک دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو لندن میں ہونے والے کئی واقعات جو ہیں، جس میں میاں بیمار شریف باقاعدہ طور پر بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے شایان علی سے منہ چھپا کر فرار ہو گئے، اس کی ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارا چینل اوورسیز ٹیلی ویژن ہے پاکستان کی آواز، عمران خان کی آواز۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس خبر کی جانب چلتے ہیں جس کا انکشاف زمان پارک کے قریبی حلقوں نے کیا ہے کہ قاسم علی شاہ جب ملاقات کے لیے آیا تو اس نے کس سازش کے تحت عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی، اور یہ فقط الزام نہیں بلکہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹشو اٹھانے اور کتاب پیش کرنے کی اصل کہانی یہ ہے کہ کتاب کے اندر رکھ کر کچھ ایسا مواد دینے کی کوشش کی جانی تھی کہ جس سے عمران خان کی صحت کو، ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے، اور فوری طور پر ریئیکشن کرنے والا کوئی ایسا زہریلا مواد جو ہے وہ کتاب میں رکھ کر دیا جانا تھا، اور پلان نمبر 2 کے مطابق ٹشو اٹھایا جانا تھا، ٹشو اٹھا کے طے کر کے جیب میں رکھا جانا تھا، اور اس کے بعد اس کی جگہ ایک نیا ٹشو جو ہے وہ عمران خان کی ٹیبل پہ رکھ دیا جانے کا پلان تھا، جس سے عمران خان اگر غلطی سے بھی اس ٹشو کو اپنے ناک یا منہ کے قریب لے جاتے تو اس میں موجود زہریلا مواد جو ہے وہ عمران خان کی جان کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں ذرائع نے بتائی ہیں، مصدقہ ذرائع نے بتائی ہیں، لیکن ہم اس لیے اس کی باقاعدہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتے کہ ہم لندن میں موجود ہیں اور اپنے ذرائع پر ہی اکتفا کر سکتے ہیں، لیکن ذرائع نے یہ بڑے سٹرونگلی بتایا ہے کہ یہ ساری سازش جو ہے وہ رونما ہونے والی تھی، لیکن قاسم علی شاہ نوسرواز جو ہے وہ اپنی عمران خان کی شخصیت کے دبدبے کے آگے
अपनी वो साजिश को पेश ना कर सका जिसके लिए उसको तैयार करके भेजा गया था, और जब उसने टिश्यू उठाकर जेब में रखा तो दोबारा से दूसरा टिश्यू बाहर निकालकर इमरान खान की मेज पर रखने की जुर्रत ना कर सका, क्योंकि कहा यह जाता है कि इमरान खान के कमरे के अंदर और पूरे ज़मान पार्क के अंदर सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, जिन्होंने कासिम अली शाह की ये टिश्यू चोरी वाली कहानी भी पकड़ ली। और बाद में जब इमरान खान के ज़राए ने, इमरान खान की सिक्योरिटी के लोगों ने इस सारे मामले का बगौर जायजा लिया तो उनको ये पता चला कि ये एक साजिश थी, और ये साजिश यकीनन डर्टी हैरी की तरफ से की गई थी, और डर्टी हैरी मिस्टर एक्स वाई ने ही कासिम अली शाह को तैयार करके भेजा था, क्योंकि उसके तमाम बाद वाले वाकयात ये बात साबित करते हैं कासिम अली शाह के किन किन लोगों से रवाबत थे, किन किन लोगों से मुलाकातें कर रहा था, कहां कहां से हदायत ले रहा था, लेकिन खौफ की वजह से, इमरान खान की शख्सियत के दबदबे रोब की वजह से वो काम ना कर सका जो उसके जिम्मे लगाकर भेजा गया था। वैसे भी इतने दिलगुर्दे का आदमी नहीं है, लोगों की किताबों से नकल करके तर्जमा करके तकरीरें कर लेना कुछ और बात है, लेकिन किसी के सामने जाकर जुर्रत के साथ कोई ऐसा कदम उठाना जिससे अगले की जान को नुकसान हो सकता हो, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। और कासिम अली शाह तो शक्ल से दिल गुर्दे वाला शख्स नजर नहीं आता, साजिशी नजर आता है, और साजिश करने की कोशिश की जो मौके पर ही पकड़ी गई, और इस तरह से अवाम में ज़लीलो ख्वार हो रहा है कि जो अल्लाह ताला ने इज्जत दे रखी थी वो रातों रात मीडिया मेट कर दी। क्योंकि लगता यह है कि इमरान खान के साथ के पीछे अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की भरपूर गैबी मदद मौजूद है, और इसी गैबी मदद की वजह से इमरान खान पर हमला करने वाला खुद ही हाथ से खंजर गिरा बैठता है, या फिर इस काबिल नहीं रहता कि इमरान खान पर हमला करने की किसी साजिश का हिस्सा बन सके। तो नाजरीन, ये बड़ी अहम खबर थी जो मैंने आपको ब्रेक की है, और इस खबर के मुसद्दका ज़राए के मुताबिक अहम इतलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी, और ये सारा मामला बयान किया जा रहा है ज़राए की जानिब से। नाजरीन, दूसरी अहम खबर, लंदन में क्या वाकया हुआ 18 जनवरी बुध के रोज शायान अली नौजवान जो है वो अपनी तालीम के सिलसिले में कई रोज से अपनी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ था और इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था, लेकिन मियाँ बीमार शरीफ के ज़राए की जानिब से और उनके जेली सेक्रेटरी की जानिब से, जो कि एक पनाह गज़ीन है और उसको काम करने की यूके में इजाजत नहीं है, लेकिन मियाँ बीमार शरीफ का जेली सेक्रेटरी बना हुआ है, लोगों को यह भी कहता फिरता है कि मैं बैरिस्टर हूं, और ये भी एक जो झूठ बोलता है, और ये भी उसके खिलाफ मामला चला जाता है उसकी जानिब से। और एक शख्स अभी आपको हम वीडियो में दिखाएंगे जो खवातीन को गालियां देता नजर आ रहा है और खवातीन पर भौंकता नजर आ रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि ये कौन शख्स है। और ये वही शख्स है जो शायान अली के स्कूल में जाकर उसकी शिकायतें करता रहा है और कहता रहा है कि शायान अली मैदान से भाग गया, लेकिन शायान अली ने आज जब पूरी कैबिनेट जो है, पूरी हुकूमत जो है वो बरतानिया में मौजूद थी पाकिस्तान की, और इसमें बड़े बड़े पिद्दी बदमाश भी मौजूद थे, राना सनाउल्लाह जैसा जो है वो फोकड़ बदमाश भी यहाँ मौजूद था, उन सब के सामने जब शायान अली मैदान में आया ललकारे मारता रहा और नवाज शरीफ को बाहर निकलने के लिए कहता रहा, सामना करने के लिए कहता रहा, और ये भी कहता हुआ पाया गया कि तुम 22 करोड़ अवाम का कैसे मुकाबला करोगे, तुम एक नौजवान के सामने नहीं आ सकते। आइए पहले ये वीडियोस मुलाजा करें, फिर मैं बाकी वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। थोड़ी सी शर्म आती है, थोड़ी सी शर्म आती है। दिल तो करता पहले आप आगे आए पीछे खड़े रहे, आपने ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕੁੜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ और सर पाकिस्तान को 8 महीने में आपका चौका किया कहाँ ले आया है? गल कल्ला बंदा जवाब नहीं दे सकता, गल कल्ला बंदा जवाब नहीं दे सकता, गल कल्ला बंदा जवाब नहीं दे सकता। You have to go from here. You take. चल जाके तुम हिला इधर से, चल जाके तुम हिला, चल इधर से, move from here, move from here. You are sick man. Go away from here. Go. ओए गद्दार, ओए गद्दार, ओए
Don't talk with him. Go. Hey, Qatar. Hey, Pakistan में जाके पाकिस्तान के मुल्क को पूरा कर. Go away from here. You have to go in your place. Go away. Go away. देखिए हमारी साइड पे हम प्रोटेस्ट कर रही है. So all the time they did same thing. He is coming here. We do peaceful protest. Go away from here. Yeah. Qatar, Pakistan, जाओ पाकिस्तान. शेखुपुरे के यहाँ चोर. पे पाकिस्तान का कुछ नहीं होना. शेखुपुरे के चोर. नवाज शरीफ पीछे से निकल रही है और नवाज शरीफ अपने नौकर मेरे स्कूल भेजते थे. नवाज शरीफ शर्म है आगे मेरे स्कूल अपने नौकरों को भेजते थे. पाकिस्तान के बाप को आटे के पीछे ये रुला रहे देखिए. हो और यहाँ पे मॉडलिंग करती फिरती है. शर्म है तुझे. नानी 420 नवाज शरीफ इधर हो, आपके बिल्कुल चोर. सामने हूँ. लद्दाख. फेस करो अभी. मरियमा मुझे फेस करे. ना कहाँ से पेश करेगी. इधर भगोड़ी उधर भगोड़ी है भगोड़ी आपने नौकरों को भगोड़े भेजते थे. चोर. और जाओ भगोड़े, चोरो. चोर. जाओ चोरो. ये जो बोलते हैं हर वक्त कि ये कहाँ गए हमसे डर के भाग गए. हम यहाँ पे खड़े हैं आज. हम डर के भागने वालों में से नहीं है. इतनी हिम्मत है. उसके स्कूल जाते हैं, हमारे पीछे आते हैं. आप सामने खड़े हैं, आए हमसे बात करें, हमसे पूछे हमें प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहते हैं हम डर के कहीं नहीं भागे. डर के भागने वाले तुम हो, जैसे पाकिस्तान से डर के भाग के आए हुए. और हम आपको एक चीज और बता दें, हम ओवरसीज हैं, ठीक है, और हम पाकिस्तानी हैं. अगर आप कहते हैं ना कि हम पीटीआई के हैं, तो हाँ हम हैं, ओरिजिनल पीटीआई के हैं. अगर किसी ओरिजिनल पीटीआई वालों में इतनी हिम्मत है तो जहाँ जाके रिकॉर्ड करवाएं अपना. आपको पता है कि ये भगोड़े हैं, आपको पता है कि ये चोर है, आपको पता है कि ये कातिल है, फिर भी आप लोग चुप करके बैठे हैं. क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आपके मुंह में पैसा ठोंसा हुआ. थैंक यू वेरी मच. मैं आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ. इसी अनफ इज अनफ. पाकिस्तान के फैसले अवाम में होने चाहिए, इन बंद दरवाजों के पीछे नहीं. नवाज शरीफ कहते हैं ये लीडर है, ये कोई लीडर नहीं है. ये गोरा अपने नौकरों को मेरे स्कूल में पकड़ बेचता है. आके मुझे फेस करे. मैं अभी ऑफिस के बाहर हूँ और उन्होंने झूठी खबर स्प्रेड की थी कि मुझे ऑफिस के बाहर आने से बैन कर दिया है. मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कोई होलोग्राम नहीं हूँ. आई एम हियर इन पर्सन. और अभी नवाज शरीफ अंदर है, उसकी गाड़ी है रेडी उसके एस्केप के लिए. आके फेस करे, आके हमें फेस करे. मुझे नहीं फेस कर सकते. 22 करोड़ आवाम को कैसे फेस करेगा ये बेगोरा बुजदिल. यहाँ पे तकरीरें करके जा रहे हैं अब. बेशरम इंसान. चोर 4 लोगों का सामना नहीं कर सकते. पाकिस्तान का लीडर बनेंगे ये. शेखुपुरे का चोर है, शेखुपुरे का चोर. आए ये पाकिस्तान. दरवाजा भी नहीं खुल रहा. शर्म करो. दरवाजा भी नहीं खुल रहा. शर्म करो. दरवाजे में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं मरियम के यहाँ. बेशुमार बेशुमार. दरवाजे में खड़े होके दुम हिला के खड़े होते हैं. चोर है, चोर दरवाजा के लोग. खुलने के लिए वेट करते हैं. ये 2 नंबर के बुज़दिल बॉडीगार्ड बना के रखे हुए हैं. हाथ तोड़ के 10 दिन फिरता है, हाथ टूटा हुआ है और अब फिर फाकी यही करता रहता है बस. तो नाजरीन, आपने देखा, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए आपने कि पिद्दी बदमाश, शेखुपुरे का पिद्दी बदमाश, कमजोर लोगों पर हमला करने वाला, उनकी जायदादों पर कब्जा करने वाला और आटा ब्लैक करने वाला, ब्लैक करने वाला ब्लैकिया जो है वो भी जावेद लतीफ यहाँ पर मौजूद है. और इसको हम आमतौर पर अम्मी वाला कहते हैं. अम्मी वाला इसलिए कहते हैं कि इसने अपनी तमाम नाजायज जराए से कमाई हुई जायदादें जो है अपनी अम्मी जी के नाम पर बना रखी हैं, जिनकी उम्र 80 साल है. और ये इसलिए बना रखी हैं कि ताकि इसको पकड़ा ना जा सके. तो ये पिद्दी बदमाश खवातीन के बारे में कितने नाजेबा जुमले बोलता हुआ पाया गया, आपने इस वीडियो में मुलाजा किया होगा. थोड़ी सी शर्म आती है. मेरा दिल तो करता है नहीं शर्म आना. दिल तो करता है नहीं शर्म आना. दिल तो करता है नहीं शर्म आना. पहले आप आगे आज पीछे खड़े रहे. ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇਦ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ. ਹੋਰ ਸਰ पाकिस्तान को 8 महीने में आपका छोटा कहाँ ले आया है. ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਤੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਤੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. मेरी पाकिस्तान के तमाम एंकर हजरात से गुजारिश है कि इसको आइंदा किसी टीवी शो में ना बुलाया जाए, क्योंकि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि टीवी की स्क्रीन पर बैठकर पाकिस्तान की माएँ बहनें जो टीवी चैनल्स देखती हैं उस पर बैठकर ये बेहुदा गुफ्तगू करे, क्योंकि इसने लंदन में भी एक खातून के बारे में इंतहाई बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि आपने वीडियो में देखे.
इसके साथ साथ नाजरीन आपने देखा कि शायान अली, जिसके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वो भाग गया और वो सामने नहीं आ रहा, वो बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करने आया, लेकिन अपने 3 लोगों के साथ, सिर्फ 3 लोग, सिर्फ 3 लोग, और सामने नाम नहाद बब्बर शेर मियां बीमार शरीफ, जिसको लोग शेर कहते हैं, भागा इस तरह कि जैसे जंगल में बंदर भागते हैं, और चूहे की तरह दुम दबाकर ये भाग गया। और शायान अली के नारों और शायान अली की ललकार के बावजूद ये बाहर ना निकला। शायान अली, जिसका नाम अली है और जो अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का मानने वाला है, अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरह खैबर के मैदान की तरह खड़ा होकर लंदन की सड़कों पर एक चोर को ललकारता रहा, और वो चोर बाहर भी ना निकला, बल्कि अपने चमचे खुरम भट्ट को भेज दिया। ये वही खुरम भट्ट है जो शायान अली की स्कूलों में शिकायत करता है। और आप ये वीडियो एक बार फिर देखिए, मैं फिर अपनी टीम को कहूंगा खुसूसी तौर पर खुरम भट्ट की गुफ्तगू आपको सुनवाएं। ये वो लफ्ज बोल रहा है नाजरीन, एफ वर्ड जिसको कहते हैं। यहाँ लंदन में, यूके में एफ वर्ड्स बोलने वालों को इंतहाई नाजेबा शख्सियात में शुमार किया जाता है, और फिर खवातीन के साथ इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करना, पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानी खवातीन की तरफ, ये इनके लीडर की तरबियत, इनकी लीडर की बेटी की तरबियत और इनके माँ बाप की तरबियत की गमाजी करता है। आइए ये वीडियो दोबारा मुलाजा करें ताकि आपको इस नंगे वतन, नंगे मिल्लत शख्स की जो हरकत हैं और गुफ्तगू है वो नजर आ सके और आप सुन सकें। You have to go from here. You take. जाके तुम हिला इधर से. चल जाके तुम हिला. चल इधर से. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! From here. You. तो नाजरीन आपने देखा खुरम भट्ट जो कि अपने लीडर का तरबियत याफ्ता है, अपनी लीडर की बेटी का तरबियत याफ्ता है, किस तरह से गंदी और गलीज गुफ्तगू कर रहा है एक खातून के साथ, और पुलिस भी मौके पर खड़ी होकर तमाशा देख रही है खवातीन को हरासा करने का। यूं लगता है कि पुलिस जो है बरतानिया की अब सिर्फ वर्दी पहनकर सड़कों पर खड़ी होने के लिए रह गई है, क्योंकि ये किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते जो खवातीन को हरासा कर रहा हो, जबकि कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी खातून को हरासा करे तो पुलिस फौरन हरकत में आ जानी चाहिए। मैं मेट्रोपॉलिटन पुलिस के चीफ से गुजारिश करूंगा कि इस किस्म के गंदे और गलीज लोगों को मुआशरे से, सोसाइटी से, बरतानिया के खूबसूरत सोसाइटी से निकाल कर बाहर फेंका जाए और इनको हीथ्रो की सीढ़ियों पर छोड़कर जहाजों में बिठाकर इनके मुल्कों में वापस भेजा जाए, ताकि ये बरतानिया के अमन मान को खराब करने से बाज रहें। तो नाजरीन आपने ललकारें देखी। नाजरीन एक वाकया मुझे याद आ रहा है, लाहौर में भी एक हमारा दोस्त था, उसका नाम मोहम्मद अली था, वो भी अली था, अली करने वाला, और वो जब वजीर आला पंजाब था मियां नवाज शरीफ और मियां बीमार शरीफ, तो वो हर जुमेरात की शब जो मॉडर्न टाउन में इनके घर पहुंच जाता था, H69 के सामने इनको ललकारता था। ये उस वक्त भी चोर थे, अब भी चोर हैं, लोग इनको ललकारते थे। अली जो है वो लोहारी गेट का रहने वाला, अभी भी लोहारी गेट अंदरून शहर में ख्वाजा साद रफीक के घर के सामने रहता है। अगर किसी को शक है तो अली से जाके मिल ले। और अली ने जितने जो है हर जुमेरात को जितनी गालियां मियां बीमार शरीफ को, जितनी ललकारें मियां नवाज शरीफ को उसके घर के बाहर जाकर चोर चोर कहकर दी हुई हैं, वो भी रिकॉर्ड और तारीख का हिस्सा है। और इसके साथ साथ अब शायान अली भी जो है ललकारे मारने के लिए और इस बुज़दिल शख्स को, इसकी बेटी को, इसके बेटों को ललकारने के लिए उनके दफ्तर के सामने मौजूद होता है। लेकिन आपने वीडियो में देखा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो जो मरियम औरंगजेब जो पड़के मारती है, झूठ बोलती है, डड्डू चार्जर यहाँ आकर फुस होगी, चार्जिंग खत्म होगी, दोबारा चार्ज होना, और मुंह पे इतना बड़ा वो जो है ना वो पहन के, क्या उसको कहते हैं, मास्क। जब कोरोना है ही नहीं अब वो मास्क की पाबंदी ही नहीं है, लेकिन मास्क से मुंह छुपाया हुआ है, असल में शक्ल छुपाई हुई है कि कोई पहचान ना जाए कि ये डड्डू चार्जर है। लेकिन डड्डू चार्जर की तो तार नजर आ जाती है, चार्जिंग कहां से होनी है वो तार से पता चल जाता है ये डड्डू चार्जर है। मेरा इन सबको ये मशवरा है, जुनैद सफदर को भी, हसन हुसैन को भी, मियां बीमार शरीफ को भी, उनके नाम नहाद झूठे मक्कार सेक्रेटरियों को भी, कि ये सब जो है ना वो बांदर टोपी पहनने। आप जानते हैं बांदर टोपी क्या होती है, जिसमें सिर्फ आंखें नजर आती हैं, और सर्दी भी यहाँ लंदन में बहुत है, लिहाजा इनको चाहिए बांदर टोपियां पहनकर फिरा करें, आंखों के सिवा किसी को कुछ नजर ना आए और यही मालूम हो कि कोई और जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनसे बदबू आ जाती है, चोर डाकू गलीज
और पाकिस्तान के खजाने को लूटने वाले जब भी बाहर निकलते हैं दूर से लोगों को बदबू आ जाती है और लोग चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दे। नाज़रीन, कल का जो मेरा प्रोग्राम है बड़ा ही अहम है, उसमें मैंने आपको डिस्क्लोज करना है कि कहां से व्हाइट गोल्ड जो है वो खरीदा गया, और जैसा कि मुबैना तौर पर कैप्टन सफदर ने ये इल्जाम लगाया है जनरल बाजवा पे कि वो दुबई में सोना खरीद रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा सोना कहां से खरीदा गया। और अनकरीब एक और बड़ी अहम खबर से आपको आगाह करूंगा जब मैं खुद दुबई में उसी दुकान के सामने खड़ा होकर एक व्लॉग करूंगा जहां से सोना खरीदा गया, कितने का खरीदा गया, कितने डॉलर और कितनी करोड़ों रुपए की मालियत का व्हाइट गोल्ड खरीदा गया बकौल कैप्टन सफदर के। वो सारी हकायक जो है उस पर हम तहकीक कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक ही हफ्ते के बाद मैं खुद दुबई में मौजूद होऊंगा और वहां से आपको मैं व्लॉग भी करूंगा, लेकिन कल के प्रोग्राम में मैं बहुत बड़े बड़े इंकशाफात करूंगा। नाज़रीन, इसके साथ ही जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था, एक और बड़ी अहम खबर है। एक बड़ी शख्सियत ने इमरान खान के साथ एक खुसूसी मुलाकात के बाद यह फैसला किया गया कि हफ्ते के रोज दोपहर 1 बजे, ब्रेक कर रहा हूं ये खबर मैं आपको, हफ्ते के रोज दोपहर 1 बजे एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिसका ताल्लुक सॉल्ट रेंज से है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होगी। अगले प्रोग्रामों में यह भी बताऊंगा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की लड़ाई किस हद तक बढ़ चुकी है और पार्टी में वाज़े तौर पर ग्रुपिंग हो चुकी है, और आखिर में फिर वही फिक्रा दोहराऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।